Padre, damos gracias बाप तेरा शुक्रिया करते हैं una vez más por este tiempo que tú le has entregado a nosotros. एक दफा फिर से जो वक्त तूने हमें बख्शा है Te damos gracias por lo que tú vas a hablar con nosotros. और हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने Toma el control de nuestros días हमारे जिंदगी का कंट्रोल है para que podamos hablar de ti. ताकि हम तेरे बारे में बात कर सकें En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में Amén. आमीन Todos sabemos qué día estamos celebrando. हम सब जानते हैं कि आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं Todos lo conocemos en la historia humana que pasó. हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ Todos lo sabemos, el sacrificio más grande fue el sacrificado. कि हम ये भी सब जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी वो कुर्बानी की गई El sacrificio que fue sacrificado una vez. वो कुर्बानी जो एक दफा कुर्बान थी En la cultura de dioses, खुदाओं के कल्चर में todo viene el sacrificio. सब जो है वो कुर्बानी मांगते हैं ¿Dónde lo viene este? और ये कहाँ से आता है De Dios, que es el verdadero Dios. उस खुदा से जो हकीकी खुदा है El Dios que era Dios, वो खुदा जो खुदा था es Dios वो खुदा है y será Dios. और वो खुदा रहेगा De ahí sacaron todas las culturas और उससे सारे कल्चर ने लिया el sacrificio. कुर्बानी Todos nosotros que estamos aquí que conocemos la cultura hindú. और हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं हम इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं En la cultura hindú todo es sacrificio. कि इंडियन कल्चर जो हिंदू कल्चर है उसमें सब कुछ कुर्बानी है De pollo, de animales, sangre y todo. जानवरों की कुर्बानी खून की कुर्बानी Así son todas las culturas. इसी तरह सब कल्चर Si हैं estudia culturas africanas, अगर हम अफ्रीकन कल्चर पढ़ें तो todo es sacrificio. सब कुर्बानी है Si estudiamos cultura suramericana, और अगर हम साउथ अमेरिकन कल्चर को स्टडी करें तो todo es sacrificio. सब कुछ कुर्बानी है Todo tiene que dar sangre, sangre y sangre. हर एक को जो है खून जो है देना पड़ता है Todo está conectado con el sangre. और हर चीज जो है जुड़ी हुई वो खून से है Hasta que Biblia dice, यहाँ तक कि बाइबल कहती है un profeta de Dios खुदा का एक नबी soltó una palabra, उसने एक कलाम दिया soltó una profecía, उसने एक नबूवत दी que Israel va a ganar la batalla. कि इस्राइल जो है वो जंग जीत जाएगी Ese profeta no era cualquier profeta. और वो नबी कोई आम नबी नहीं था Ese profeta tenía tanto dimensión कि उस नबी की वो डिमेंशन थी que su hueso seco levantaron muerto. कि उसकी सूखी हड्डियों ने मुर्दे को जिंदा कर दिया Él no estaba en la tierra, वो दुनिया में नहीं था pero su hueso levantaron muerto. लेकिन उसकी सूखी हड्डियों ने एक मुर्दा को जिंदा किया Ahora tienen que saber, अब हमें ये समझने की जरूरत है él tenía un poder grande. उसके पास एक बहुत बड़ी कुदरत है Él solta una palabra profética वो एक नबूवत से भरा हुआ कलाम देता है y dice, और वो ये कहता है Israel va a ganar. कि इस्राइल जीत जाएगा Y cuando Israel estaba a punto de ganar, और इस्राइल जब जीतने को था el ejercicio o la país que estaba peleando con ellos, वो फौज या वो जो मुल्क था जिसके मुखालिफ वो लड़ रहे थे él, el rey, वो बादशाह sacrifició su hijo उसने अपने बेटे की कुर्बानी की y por ese sacrificio और उस कुर्बानी की वजह से Israel perdió la batalla. इस्राइल जो है वो जंग हार गया Sacrificio es importante delante de Dios. ये जो कुर्बानी है वो खुदा के आगे बहुत खास है Cada sacrificio हर कुर्बानी dado delante de Dios जो खुदा के आगे दी जाती है trae una recompensa. वो एक इनाम लेके आती है ¿Usted lo cree o no lo cree? आपका ये ईमान है या नहीं है Pero eso lo trae. लेकिन इनाम लेके आती है Lo voy a explicarlo así. मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ El decreto de Dios, खुदा की जो डिक्रेट है decretos formados, जो खुदा के फरमान है no puede cambiar. वो तब्दील नहीं हो सकते El decreto de Dios खुदा के फरमान no puede cambiar. वो तब्दील नहीं हो सकते ¿Qué es decreto de Dios? और खुदा के फरमान क्या है Dios decretó en el inicio खुदा ने इब्तिदा में जो है फरमान दिया que su hijo tiene que morir. कि उसके बेटे को मरना है Jesús oró para que no muriera. यीशु ने दुआ की कि वो ना मरे Pero el decreto no puede cambiar. लेकिन जो फरमान है या जो हुक्म है वो तब्दील नहीं हो सकता David oró por su hijo दाऊद ने
दुआ की por 8 días, 8 दिन तक, día y noche, रात और दिन, pero fue decretado लेकिन ये फरमान हो चुका था que su hijo de pecado tiene que morir. कि जो उसका गुनाह में बच्चा बेटा पैदा हुआ है उसे मरना है, Y se murió. और वो मर गया। El decreto nadie puede cambiar. जो लिखा जा चुका होता है वो तब्दील नहीं Lo होता que है। Dios soltó ya no puede cambiar. जो खुदा बोल देता है वो तब्दील नहीं हो Y सकता। Dios no te maldijo en la creación de Él. और खुदा ने आप पर लानत नहीं की अपने बनाई हुई चीजों पे। Dios te bendijo en los lugares celestiales juntamente con Jesús, dice la Biblia. बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें आसमानी खुदाओं के पे यीशु के साथ जो है ब्लेस किया है। Dios te bendijo en los cielos. खुदा ने आपको आसमान में बरकत दी है। Antes que tú viniste en la tierra, इससे कि आप इस दुनिया में आते el decreto fue hecho por ti. आपके ये फरमान जारी हो चुके थे Que tú no eres कि maldición, आप लानत वाले नहीं tú हैं, eres de bendición. आप बरकत वाले हैं। Antes de fundación de la tierra, इस दुनिया की इब्तिदा से पहले Dios eligió a nosotros en Jesús Cristo. खुदा ने हमें यीशु मसीह में चुन लिया। Ese es un decreto de Dios. ये खुदा का एक फरमान है Que ellos son míos. कि ये मेरे हैं। Usted y tu familia es de Dios. आप और आपका खानदान को खुदा का है, Pero para tenerte a ti, लेकिन आपको लेने के लिए Él tenía que pagar el precio. उसे एक कीमत चुकानी थी। Nada es gratis. कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, Nada puede ser gratis. कुछ भी मुफ्त नहीं हो El सकता। decreto de Dios खुदा का फरमान era para que nosotros podamos ser bendecidos. ये था कि हम बाबरकत हो, Era para que nosotros no vamos a estar en maldición. ये था कि हम लानत में ना रहे। Pero por el pecado de Adán लेकिन आदम के गुनाह की वजह y से por pecado de nuestros antepasados, और हमारे गुजरे हुए बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से maldición se cayó sobre nosotros. जानते हमारे ऊपर गिरी, El problema se cayó sobre ये nosotros. लात हमारे ऊपर गिरी। Pero Dios tenía decreto लेकिन खुदा का एक फरमान था que yo voy a comprarlo. कि मैं इनको खरीदूंगा, Yo voy a pagar el precio por ellos. मैं इनकी कीमत चुकाऊंगा, Yo voy a hacer algo para ellos. मैं इनके लिए कुछ करूंगा। Ese es el día que estamos celebrando. और ये वो दिन है जो आज हम Donde el decreto de Dios जहाँ पे खुदा का फरमान tenía que cumplir. पूरा होना था Que somos los hijos de Dios. कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, Somos para Dios. हम खुदा के लिए हैं, No estamos para vivir en el infierno. हम जहन्नुम में जीने के लिए नहीं हैं। Estamos hechos para vivir con Él en su reino. हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम उसके साथ उसकी बादशाहत में El जिएं। decreto de Dios खुदा का फरमान para la humanidad ऐसे इंसानियत के लिए era para vivir con Él. ये था कि हम उसके साथ जिएं। Pero por el pecado, लेकिन गुनाह के वसीले todos se quedamos en la presencia de Dios. हम सब जो है खुदा की हजूरी के बगैर रह जाते हैं। Pero vino el decreto de Dios. लेकिन फिर एक खुदा का फरमान आता है Hay un día donde voy a preservarlo, कि एक दिन है जहाँ पे मैं तुम्हें प्रिजर्व करूंगा, donde voy a recibirlo una vez más, जहाँ पे मैं दोबारा से तुम्हें कबूल करूंगा, donde voy a traer la humanidad una vez a mí otra vez. एक दफा फिर मैं नस्ल इंसानियत को अपने पास लेके आऊंगा। Ese decreto no fue con 4 patas de animal. और ये फरमान जो है 4 टांगों वाले जानवर से पूरा नहीं हुआ। Ese decreto fue antes de creación de la humanidad. ये फरमान जो है नस्ल इंसानियत के बनाए जाने से पहले से ही पूरा Un होगा। día. कि एक दिन Uno de nosotros हम में से tiene que ir abajo, किसी एक को नीचे जाना है tiene que vivir en carne, और जिस्म में जीना है, tiene que vivir en sangre y carne, कि जिस्म और खून में जीना है, y tiene que tomar el pecado de humanidad, और नस्ल इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर लेने y हैं, tiene que llevar el pecado de और humanidad, नस्ल इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर लेके जाने y हैं, tiene que llevarlo en la cruz de और Calvario. जंगल की सलीब के ऊपर लेके Y जाने ya हैं। dice बाइबल कहती que है quien está en la cruz जो सलीब पे है es maldito. वो लानती है। Jesús यीशु se transformó en maldición उसने अपने आप को लानत में तब्दील कर दिया para dar bendición a nosotros. ताकि वो हमें बरकत दे सके। Él no conocía el वो pecado, तो गुनाह को नहीं जानता था, pero recibió pecado de nosotros. लेकिन उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। Para mucha gente, बहुत से लोगों के लिए hoy son 7 frases de Jesús nada más. बहुत से लोगों के लिए आज तक खुदा के जो यीशु के जो साथ आखिरी बात है वो है कुछ नहीं। Pero tiene que entenderlo. लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है Ese no
no eran solo 7 frases que él habló. ये सिर्फ 7 बातें नहीं थे जो यीशु ने बोले। Este era el decreto de Dios. ये खुदा के फरमान थे। Este era el plan perfecto de Dios. ये खुदा का कानून प्लान था। Que Jesús vino a vivir en la tierra. यीशु के दुनिया में आना था। Llevar el pecado de nosotros. हमारे गुनाह अपने ऊपर लेने थे। Y tiene que llevar a la cruz de Calvario. और कलवरी की सीढ़ी तक लेके Por आए। eso cuando Jesús estaba en la cruz, इसलिए जब यीशु सीढ़ी पे था, la oscuridad se cubrió la tierra. ये दुनिया को तारीकी ने ढांप दिया। Pero él venció la oscuridad. लेकिन उसने उस तारीकी में फतह पाई। Antes que él abrió la boca a entregar su cuerpo a su Padre, इसे पेश करके वो अपना मुंह खोला, अपना बदन अपने बाप को भेजा। la Biblia dice, बाइबल कहती है, la cortina del lugar वो santísimo जो पाक की दुकान था, उसका जो पर्दा था, se rompió de la arriba hasta abajo. वो ऊपर से नीचे तक फट गया। Cuando Jesús le entregó su espíritu a su Padre, जब यीशु ने अपनी रूह अपने बाप को दी, el Espíritu de Dios salió del lugar santísimo खुदा का रूह जो उस पाक की दुकान में था, उधर से निकला, por siglos. जो सदियों से वहाँ पे था, Vivía en el lugar santísimo. जो पाक की दुकान में रहता था, No vivía fuera del lugar santísimo. पाक की दुकान से बाहर नहीं रहता Hasta था, no vivía en el lugar santo tampoco. यहाँ तक कि पाक दुकान में भी नहीं रहता था, Pero vivía en el lugar वो santísimo. पाक की दुकान में रहता Para था। que usted lo entienda, कि आप ये समझ सके, para entrar en el lugar santísimo, पाक की दुकान में दाखिल होने के लिए no podía abrir la cortina. पर्दा ऐसे नहीं खोल सकते थे, Tenía que entrar por bajo de cortina. पर्दे के नीचे से निकलना पड़ता था। Ahí no había ni luces, ni velas, nada. वहां पे ना तो लाइट थी और ना ही कैंडल्स थी। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Si el sumo sacerdote entra क्योंकि अगर सरदार रानी जब दाखिल होता था y se brillaba dentro algo, और वो si brillaba algo, हमारे अंदर कुछ चमकता, esperaba la presencia pura de Dios. ये खुदा की प्योर प्रेजेंस थी। Y si no brillaba, और अगर वो ना वहां पे कुछ ना चमकता, entonces sabes que el sumo sacerdote आपको पता है सरदार रानी lo tiene que coger sangre उसे खून लेना होता था y tiene que entrar en el lugar santo और उसे पाक मुकाम पे आना y होता ahí था tiene que entrar en el lugar santísimo और उससे आगे उसे पाक की मुकाम में जाना पड़ता था y ahí tiene que tirar sangre और वहां पे उसे खून के छींटे फेंकने पड़ते थे sobre la arca de Dios. खुदा की उस आर्क के ऊपर, Era Jesús. अहद के संदूक पे, Y él tenía que saber en su mente, और उसे उसकी ज़हन को समझना पड़ता él था, tenía que saber en su mente उसे अपनी ये सोच में समझना पड़ता था dónde está la arca. कि अहद का संदूक कहाँ पे No lo है। podía ver. वो देख नहीं सकता था, Pero cuando él tiraba sangre, लेकिन जब वो खून के छींटे फेंकता de था, repente dice que luz se brillaba. कहते हैं कि एकदम से जो है रोशनी चमक जाती है। Así cuando estaba trabajando, इसी तरह जब काम कर रहा होता था, cuando estaba trabajando, जब काम कर रहे थे, el papá de Juan de Bautista यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप estaba dentro वो अंदर था y brilló un ángel और एक फरिश्ता चमकता हुआ आया y dijo, और उसने कहा tu esposa va a sacar luz. कि तेरी बीवी हामला होगी, Él dijo, no puede pasar. और उसने आगे से जवाब में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, Pero el decreto de Dios लेकिन खुदा का फरमान te va a sacar la luz. वो तुझे रोशनी देगा, No, te va a sacar la luz. वो हामला होगी। Pero el hombre estaba diciendo, लेकिन उसका बाप ये कह रहा था, el hombre estaba diciendo, वो सच ही कह रहा था, era sacerdote, वो सरदार नहीं था, sacerdote. वो काहिन था, Él estaba diciendo, no puedes. वो काहिन ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। Muchos de nosotros dicemos a veces así. बहुत से हम में से ऐसे ही कहते हैं कि ऐसा Yo lo he नहीं dicho हो सकता। muchas veces. मैंने भी बहुत दफा कहा, Usted creo que ha dicho muchas veces. मैं आप लोगों ने भी बहुत दफा कहा, Pero cuando Dios hace un decreto, लेकिन जब खुदा एक फरमान देता है, nadie puede cambiarlo. फिर कोई भी तब्दील नहीं कर Este सकता। hombre se quedó mudo वो शख्स जो है वो गूंगा हो गया y no podía hablar. और बोल नहीं सकता था। Y cuando sumo sacerdote entraba, और जब
brillaba a veces luz, कभी जो है वो रोशनी चमकती थी कभी कभी a veces. कभी कभी Pero cuando Jesús fue en la cruz de Calvario, लेकिन जब यीशु कलवरी की सीढ़ी पे गिरा se brilló para siempre. वो हमेशा के लिए नूर बन के चमका Ya usted no vive en oscuridad. अब आप तारीकी में नहीं रहते La luz de Cristo está sobre nuestra vida. मसीह का नूर आपकी जिंदगी के ऊपर La है luz de Cristo es sobre nuestra casa. मसीह का नूर हमारे घरों के ऊपर है Ya no andamos en oscuridad. अब हम तारीकी में नहीं चलते Más la luz de Cristo es sobre nuestra vida. मसीह का नूर हमारी जिंदगी के ऊपर है Ya tú no necesitas sangre para poner en altar, अब आपको खून की जरूरत नहीं है कि आप ऑल्टर के ऊपर पेश करें para que la bar santísimo pueda brillar. ताकि पाप के निर्मुमान जो है वो रोशन हो जाए Ahora tú necesitas creer en Jesús. आपको अब सिर्फ जरूरत है कि आप यीशु पे ईमान Ahora रखें tienes que recibir la promesa de Dios. अब सिर्फ आपको खुदा के वादों को लेना है Ahora tienes que creerlo en la palabra de Dios. अब सिर्फ आपको खुदा के कलाम पे ईमान रखना है Él dijo en su frase, उसने अपने कलाम में कहा consumado es. उसने अपने कलमे में कहा तमाम हुआ El sexto frase de Cruz de Calvario जो छठा कलमा है कलमी की सीढ़ी का dice consumado वो es. कहता है तमाम हुआ ¿Sabe qué significado tienes? जानते हैं इसका मतलब क्या है Ya no puede añadir nadie, अब उसमें कुछ और कोई डाल ही नहीं सकता no puede quitar nadie. उसमें से कोई कुछ निकाल नहीं Tu सकता bendición आपकी बरकत no es tu oración, आपकी दुआएं नहीं es decreto de Dios. वो खुदा का फरमान है Lo que Él dijo, जो उसने कहा consumado es. तमाम हुआ Consumado es. Consumado es. En otra palabra, और दूसरे लफ्जों में Él estaba diciendo, वो ये कह रहा है lo que hizo mi Padre, जो मेरे बाप ने किया yo quiero hacerlo aquí. मैं यहाँ करना चाहता Lo हूँ que hicimos en los cielos, जो हम आसमान पे करते हैं lo que जो hicimos, हमने आसमान पे किया lo voy a hacer en la tierra. मैं दुनिया में करूँगा 5 días, 5 दिन Dios lo hizo mundo. खुदा ने दुनिया को Y बनाया 6 días, और छठे दिन Dios lo hizo al mundo. उसने दुनिया को बनाया Por 6 días, 6 दिन तक Dios hizo todo lo que usted lo ve hoy. हर वो चीज भली को आज आप देखते हैं Pero terminando 6 día, और छठा दिन खत्म होते Él dijo, उसने कहा voy a descansar. मैं आराम करूँगा Eso es lo que dijo Jesús. ये है जो यीशु ने कहा 6 veces abrió su boca उसने 6 दफा अपने मुंह को खोला y habló algo importante de su boca. और अपने मुंह से कुछ बहुत खास बोला Pero cuando abrió 6ª vez, लेकिन जब उसने छठी दफा अपना मुंह खोला consumado es. उसने कहा तमाम हुआ ¿Sabe qué dijo? जानते हैं क्या कहा Lo que hemos hecho en los cielos, जो हमने आसमान पे किया lo vamos a hacerlo en la tierra. अब हम इस दुनिया में करेंगे Voy a entregar mi espíritu a mi Padre. कि मैं अपना रूह अपने बाप को दूंगा Voy a descansar. और मैं आराम करूंगा Quiero decirte a ti hoy, आज आपसे ये कहना चाहता हूँ Dios quiere que tú descansas en Él. खुदा चाहता है कि आप उसमें आराम करें Dios quiere que tú confías en Él. खुदा चाहता है कि आप उस पर एतमाद करें El decreto de Dios, खुदा का फरमान nadie puede से cambiarlo. कोई तब्दील नहीं कर सकता Nadie va a और cambiarlo. कोई उसे तब्दील करेगा Nadie नहीं va a tener poder de और cambiarlo. किसी के पास इतनी कुव्वत नहीं कि उसे तब्दील कर Yo voy a सके explicarlo de otra manera. मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ Dios vino a Abraham खुदा इब्राहिम के पास y आया dijo, और उसने कहा te haré una nación कि grande. मैं तुझे एक बड़ी कौम बना Era दूंगा el decreto de Dios ये खुदा का फरमान था que Él va a ser una nación grande. इब्राहिम से वो एक बड़ी कौम बनाएगा Pero Abraham no tenía nada. लेकिन इब्राहिम के पास कुछ Pero नहीं था cuando Dios decreta algo, लेकिन जब खुदा किसी चीज का फरमान देता है nadie puede cambiarlo. उसे कोई भी तब्दील नहीं No कर सकता importa cómo está tu situación, फर्क नहीं पड़ता आपके हालात कैसे no हैं importa qué tú estás viviendo, फर्क नहीं पड़ता आप क्या जी रहे हैं el decreto de Dios खुदा का फरमान es de Dios वो खुदा का है y son de Dios. और वो खुदा के हैं Y no hay poder और कोई ऐसी कुव्वत que नहीं puede cambiar los decretos de Dios. जो खुदा के फरमानों को बदल सके No hay poder. कोई ऐसी कुव्वत नहीं Mira al oeste. सिर्फ इसे देखे Jesús llevó pecado de toda la humanidad. कि यीशु जो है नस्ल इंसानियत के सारे गुनाह ले गया Todo el pecado que hemos hecho hasta hoy हम सब ने जितने भी गुनाह आज तक किए हैं y lo que vamos a hacer, और जो हम करेंगे Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. यीशु कलवरी की सीढ़ी पे ले जा चुका है Pero ¿qué
hizo el pecado, और अगर वो गुनाह पे गलबा पाया, el decreto es, फरमान ये है, tú ya no vives para pecado, फिर आप अब गुनाह के लिए नहीं जीते, tú vives para Dios. आप खुदा के लिए जीते हैं, Tú estás para Dios आप खुदा के लिए हैं y tú estás hecho para Dios. और आप खुदा के लिए बने हैं। Muchas veces yo le escucho a personas बहुत दफा मैं लोगों को सुनता हूँ que yo no peco, कि मैं गुनाह नहीं करता, yo no tengo ningún pecado. मेरे में कोई गुनाह नहीं। Yo he escuchado personas मैंने लोगों को सुना है donde ellos lo piensan, जहाँ पे वो ये सोचते हैं que ellos no tienen pecado, कि उनमें कोई गुनाह नहीं, piensan que son santos, वो सोचते हैं कि वो पाप हैं, lo piensan que son como Jesús. वो ये सोचते हैं कि वो यीशु जैसे हैं। Piensa a ver, सोचे एक दफा, hoy le pongo como Jesús. आज हम इसको यीशु की तरह लेंगे, No vamos a la, como le quitaron la ropa, vamos a dejarlo así. हम उस तरह से नहीं करेंगे जैसे यीशु ने उन्हें कपड़े उतारे, हम उसको ऐसे ही यीशु की तरह लेंगे। Imagina a ver, तसव्वुर करें, ese niño ये बच्चा no conoce pecado. ये गुनाह को नहीं जानता, Muchos de nosotros lo conocemos. बहुत से हम नहीं जानते हैं, Su papá lo conoce pecado. उसके माँ बाप जो है Su papá lo conoce. उसका माँ इसका बाप, इसका बाप जानता है, Su madre lo conoce. उसकी माँ जानती है, Su hermano pequeño no lo conoce. Su hermano pequeño no lo conoce. और इसका जो छोटा भाई है वो नहीं जानता, Pero su hermano mayor ya lo conoce algo. लेकिन उसका जो बड़ा भाई है वो कुछ हाँ जानता है। Entonces depende donde tú estás en su vida. इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ में हैं, ¿Tú conoces pecado o no lo conoces कि pecado? आप गुनाह को जानते हैं या नहीं जानते। Pero todos pecamos, por eso te quedamos con la gloria de Dios. ¿Cómo? Todos hemos pecado, por eso hemos quedado de la gloria de Dios. हम सब ने गुनाह किया, इसलिए खुदा की नजर से बाहर रह गए, महरूम महरूम रह गए। Todos hemos pecado. हम सब ने गुनाह किया, Todos. हम सब ने, सब ने। Ese niño, ये बच्चा, hoy ese niño, ये आज बच्चा है, pero llegaron un tiempo de 5, 8, 10 años. 8-5 साल में एक दिन आएगा, 5, 8, 10. 5-8-10 साल में Que vas a pecar. कि ये गुनाह करेगा, Y su papá tiene que entender esto. और इसके माँ बाप को ये समझने की जरूरत A है। veces nosotros como padres no queremos entender esto. कभी कभी माँ बाप होते हैं, हम ये समझना नहीं चाहते, No queremos saber que nuestros hijos van a pecar. हम ये जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो कभी गुनाह करेंगे। Pensamos que nuestros hijos son los santos. हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पाप हैं, पाप हैं, Son los mejores del mundo. दुनिया के बेस्ट बच्चे हैं। Pero el decreto de Dios es, लेकिन खुदा का फरमान ये है, si él pecara mañana, अगर ये आने वाले कल में गुनाह करेगा, hay una sangre que pagó precio por él. ये खून है जिसने इसके वास्ते कीमत चुकाई, Alguien pagó precio de su pecado. किसी ने इसके गुनाह की कीमत चुका दी है। Todavía no lo he hecho, अभी भी इसने गुनाह किया नहीं, pero ya está pagado. लेकिन इसके गुनाह की कीमत चुका दी गई है। ¿Saben qué significado es? जानते हैं इसका मतलब क्या है? David por eso lo dijo, इसलिए दाऊद ने कहा aunque andaré en la valle de la कि muerte, बेशक मौत के साए की वादी से मैं गुजरूं, yo no temeré de nada. मैं खौफ न खाऊंगा, मैं किसी चीज से नहीं इसी डरूंगा। ¿Sabe qué dijo? जानते हैं क्या कहा? Diciendo este versículo, ये आयत कहते हुए David está diciendo en confianza que él tenía en Dios. वो उस इत्मीनान को दिखा रहा है जो खुदा पे उसका है। Por él está entendiendo el decreto de Dios. जहाँ वो ये समझ रहा है कि खुदा का फरमान क्या है, El decreto de Dios, कि खुदा का फरमान, aunque donde sea que él es, कि aunque sea que donde él es, जहाँ कहीं पे भी वो है, alguien está con él. कोई उसके साथ है। Por eso él lo dice, इसलिए वो ये कहता है Jehová es mi pastor. कि खुदावन मेरा जुबान है। Son dos cosas. ये दो चीजें हैं, Jehová es mi pastor. खुदावन मेरा जुबान है, Nada me falta. मुझे किसी चीज की कमी ना हो। El decreto está diciendo, फरमान ये कह रहा है, mi pastor está ahí मेरा जो चरवाहा है यहाँ पे वहाँ है, y nada me faltará. और मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। ¿Sabe qué está haciendo David? जानते हैं ना क्या कह ¿Quién रहा है? es mi pastor? कि जो मेरा चरवाहा है, जुबान है, Él hizo un decreto कि उसने एक फरमान दिया que nada me faltará. कि मुझे कभी किसी
su Hijo para morir en la cruz para nosotros. जिसने अपने बेटे को कलवरी पे हमारे वास्ते भेजा कि वो मोए, Tenía un decreto para ustedes. उसके पास एक फरमान था आपके लिए Los hijos del león pueden quedar con hambre, कि जो शेर के बच्चे हैं वो भूखे रह सकते हैं, भूख में रह सकते हैं, pero todos los que confían en Jehová no vivirán en hambre. लेकिन जो यहोवा में ईमान रखेंगे वो हमेशा तक कायम रहेंगे, भूखे ना Dice रहेंगे। Morán, Biblia dice, बाइबल ये कहती है los hijos del león शेर के बच्चे pueden quedar con hambre. वो भूखे रह सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, Pero los que creen en Dios लेकिन जो खुदा पे ईमान रखते हैं no vivirán triste. वो ये नहीं जिएंगे। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? El decreto de Dios खुदा का फरमान es para bendecirte, ये इसलिए है कि वो आपको बरकत दे, es para traer victoria en tu vida. ये इसलिए है कि आपकी जिंदगी के ऊपर फतह लेके आए। Piensa, सोचिए Él es Jesús. कि ये यीशु है, Él no sabe qué es pecado. ये नहीं जानता कि गुनाह क्या है, Él nunca pecó. इसने कभी गुनाह नहीं किया, Jesús nunca pecó. यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया, Jesús no conocía el pecado. कि यीशु जो है वो गुनाह को जानता भी नहीं था, Él era santo de Dios. वो खुदा का पाप था, Él era limpio. वो साफ था, Él era la luz de los cielos. वो आसमान का नूर था। Cuando Dios hizo el mundo, जब खुदा ने दुनिया को बनाया, lo hizo diciendo, sea la luz. उसने आसमान से कहा कि No, Él dijo que sea la luz. उसने कहा कि नूर हो जाए, Roshni. रोशनी हो जाए, ¿Y qué pasó? और क्या हुआ? Sol no estaba. सूरज नहीं था, Era Jesús. वो यीशु था, Y este Jesús और वो यीशु estaba llevando tu pecado sobre Él. वो हम लोगों के गुनाह को अपने ऊपर लेके जा रहा था। Yo no puedo llevar mis pecados. मैं अपने गुनाह नहीं लेके जा Yo no सकता, puedo llevar ni mi pecado. मैं तो अपने गुनाह भी नहीं ले सकता, ¿De qué अब pasa? लेके जा सकता। Imagínate, तसव्वुर करें, llevando pecados de 18 millones de personas que nacieron hasta hoy. तसव्वुर करें 18,000 बिलियन लोगों के गुनाह आज तक जो पैदा हुए उनको अपने ऊपर लेके जाना। Ahora estamos viendo 8.3 millones de personas. अभी जो है हम 8.3 बिलियन लोग हैं। Lo que estudian dicen hemos nacido casi 18 millones de personas. स्टडी ये कहती है कि हम 18,000 बिलियन लोग 18 billion. 18 बिलियन लोग पैदा हुए हैं Desde que creación hasta ahora. शुरू से अब तक। Imagínate, तसव्वुर करें, usted no podía llevar tu pecado. आप अपने गुनाह नहीं लेके जा सकते थे, Nadie de nosotros puede llevar ni nuestro pecado. हम में से कोई भी अपने गुनाह भी नहीं लेके जा सकता था, Pero Jesús लेकिन यीशु estaba llevando el pecado de todo. यीशु जो है सबके गुनाह लेके जा रहा था। Aunque no era muy alto, वो बहुत कोई लंबा नहीं था, pero cargaba pecado de todo. लेकिन वो सबके गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था। Aunque físicamente no le notaba como un hombre del mundo, ¿verdad? Fuerte, ¿no? बेशक कि वो जिस्मानी तौर पे बहुत बॉडी बिल्डर टाइप नहीं था, Pero llevó pecado de todo. लेकिन वो सबके गुनाह लेके गया। Ese es el Viernes Santo, ये है गुड फ्राइडे, donde mi pecado, जहाँ पे मेरे गुनाह, de tu pecado, जहाँ पे आपके गुनाह, de nuestro pecado, जहाँ पे हम सबके गुनाह alguien estaba cargando. जो कोई लेके जा रहा था, Alguien estaba cargando जिसने अपने ऊपर लिए हुए थे, lo que tenía que llevar nosotros. जो हमारे ऊपर होने थे, Alguien lo llevó en la cruz del Calvario. कोई उसको कलवरी की सीढ़ी पे लेके गया। Y no fue por un decreto. ये एक फरमान की वजह से हुआ, Era el plan perfecto de Dios. ये खुदा का कामिल प्लान था, Era un plan para darnos salvación. ये प्लान था कि वो हमें निजात देगा।
muchos bienes santos, es cosa para mí, es donde cielos se abrieron para la humanidad. बहुत से लोगों के लिए गुड फ्राइडे बहुत तरह का है, लेकिन मेरे लिए ये ऐसे है जैसे आसमान का दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए खुल गया, El infierno se cierra. जहाँ पे जहन्नुम बंद हो गया। Por este primer mensaje de Pedro fue de ahí mismo, इसीलिए पतरस का जो पहला मैसेज था वहीं पे था, ¿no? El poder de tumba no se quedó en el muerte, no podía aguantarlo. कि जो कब्र की कुवत है, कब्र है जो उसको ले नहीं सकी, पकड़ नहीं सकी, जकड़ नहीं सकी, Él venció, उसने उस पे फतह पाई, porque fue de su voluntad entregar su vida para nosotros. क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को उसने हमारे वास्ते दिया। Nadie podía quitar su vida. कोई भी अपनी जिंदगी नहीं ले सकता, Nadie podía quitar su vida. उसकी जिंदगी कोई भी नहीं ले सकता था। Nadie tenía poder de quitarte a Jesús. किसी के पास इतनी कुवत नहीं थी कि वो यीशु की जिंदगी लेता, Él era la vida para todos. वो सबके लिए जिंदगी था। Cuando Jesús lo dijo a Pedro, जब यीशु ने पतरस से कहा ponte tus palabras dentro. कि अपनी तलवार अंदर रख, Si ahora lo pido a mi Padre, कि अगर मैं अभी अपने बाप से कहूँ तो 12 legiones de ángeles van a bajar. कि 12 लीगियोनेस जो फरिश्ते। हाँ, 12 फरिश्ते, 12 मई फरिश्ते, तुमन फरिश्ते नीचे आ जाएंगे। ¿Sabe cuántos son? जानते हैं कितने होते हैं? 72,000 ángeles. 72,000 फरिश्ते। Un ángel de Jehová एक फरिश्ता जो यहोवा का है, bajó una vez, वो एक दफा नीचे आया, mató 180,000 personas en una noche. उसने एक रात में 180 लोगों को 1,80,000 लोगों को मार दिया en una noche. एक रात में। Imagínate, तो सबूर करें, si bajaban 72,000 ángeles. तो सबूर करें अगर 72,000 फरिश्ते उधर उतरा कर लो, Imagínate que Jesús estaba ahí तो सबूर करें कि यीशु वहां पे है। en la cruz. अब सलीब पर ¿Tú no crees आपको ये लगता नहीं que Micael estará ahí mirando कि मिकाईल वहां पर उसे देख रहा होगा, la espada en su mano, अपने हाथ में तलवार लिए, pidiendo a Dios, mándamelo, खुदा से ये कहते हुए कि मुझे नीचे भेज, dame 5 minutos y acabo con todos ellos? सिर्फ मुझे 5 मिनट दे और मैं इन सबके साथ खत्म कर दूंगा। ¿Tú no crees que se lo habló? आपको नहीं लगता कि उसने ऐसा कहा होगा? Siempre hemos rodeado a él, हमने हमेशा उसके आगे घुटना किया है, siempre hemos rodeado ante él. हम हमेशा उसके आगे झुके हैं, Y hoy esta humanidad está pegando a él. और आज नस्ल इंसानियत उसको मार रही है। Dame 5 minutos सिर्फ मुझे 5 मिनट दे y termino con toda la humanidad. और मैं नस्ल इंसानियत के साथ सारा कुछ खत्म कर दूंगा। Termino con la humanidad. ये मैं इंसानियत के साथ खत्म कर दूंगा। Al को खत्म कर दूंगा. Termino con este humanos. मैं इंसानों को खत्म कर दूंगा। Pero Dios dijo, लेकिन खुदा ने कहा, mi decreto es, मेरा फरमान ये है son mis hijos, कि ये मेरे बच्चे हैं, ustedes son mi creación, कि तुम ये सब मेरी मखलूक, ustedes son mi creación, tomen mi grupo, ellos son mis hijos, ये मेरे बच्चे हैं, hijos, बेटे बेटियां हैं। ángeles son la creación de Dios, फरिश्ते जो हैं वो खुदा की मखलूक हैं, pero ustedes son los hijos de Dios, लेकिन आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, somos hijos de Dios. हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। Jesús no fue por la creación, और यीशु जो है मखलूक के लिए नहीं गया, fue por hijos de Dios. वो खुदा के बेटे बेटियों के लिए गया, Porque Jesús no es la creación de Dios, क्योंकि यीशु जो है वो खुदा की मखलूक नहीं है, es el Hijo de Dios. वो खुदा का बेटा है। Y cuando Él fue en la cruz de Calvario, और वो जब कलवरी की सलीब पे गया, dio
transformó a nosotros como hijos de Dios. और उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियों होने में तब्दील कर दिया। Tú ya no eres creación de Dios. अब आप खुदा की मखलूक नहीं हैं। Usted es la hija, hijo de Dios. अब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। El Viernes Santo गुड फ्राइडे no es un día normal. कोई आम दिन नहीं है। Es el día donde sangre fue derramado para nosotros. ये वो दिन है जहाँ पे खून हमारे वास्ते बहाया गया। En Rwanda, África, रवांडा अफ्रीका में todavía अभी भी el día viernes फ्राइडे के दिन hay un altar वहाँ पे एक मजबा है donde dicen que es el altar más grande del mundo, जहाँ पे कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मजबा है, donde dan sacrificio जहाँ पे कुर्बानी की जाती है 10 jóvenes vírgenes niños, 10 कवारी lड़कों की, लड़कों की। todos los viernes हर जुम्मे को cortan cuello de 10 jóvenes 10 कवारी लड़कों की गर्दन काटी जाती है। todos los viernes हर जुम्मे को para recibir el poder ताकि वो कुदरत को पाए, कुवत को ले, del infierno. जहन्नुम की। No estoy pasando un cuento, es la verdad. मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये सच है। Yo tengo un amigo que él vivió esto. मेरा एक दोस्त है जो ये जिया Todos los viernes हर जुम्मे को lo hace वो ये करते हैं para recibir el poder del infierno. ताकि वो जहन्नुम की कुवत को ले, Poder del infierno. जहन्नुम की कुवत को, Poder del infierno. जहन्नुम की कुवत को। Pero para mí, लेकिन मेरे लिए el altar más grande जो मजबा सबसे बड़ा है no es el Rwanda, वो रवांडा में नहीं है, está en la donde Jesús fue crucificado. ये मेरे लिए वो जगह है जहाँ पे यीशु मसलूब हुआ, Donde Jesús abrió su boca जहाँ पे यीशु ने अपना मुंह खोला y dijo, और कहा, Padre, बाप perdónanos, इनको माफ कर, porque no lo saben lo que hacen. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। Donde Jesús abrió otra vez la boca. जहाँ पे यीशु ने दोबारा से अपना मुंह खोला Hoy कि आज tú vas a estar conmigo. भी तू मेरे साथ परलोक में होगा। Donde Jesús abrió su boca. जहाँ पे यीशु ने अपना मुंह खोला, Mujer, ए औरत, ese es tu hijo. ये तेरा बेटा है। Y muchacho, ए बेटे, ese es tu ये madre. तेरी माँ है। Donde Jesús lo dijo. जहाँ पे यीशु ने कहा, Oh, mi padre, ¿por qué me ha dejado? ए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Donde Jesús lo dijo. जहाँ पे यीशु ने कहा, Tengo sed, मैं प्यासा हूँ, tengo sed, मैं प्यासा हूँ, tengo sed. मैं प्यासा हूँ। Donde Jesús lo dijo. जहाँ पे यीशु ने कहा, Consumado es. तमाम हुआ, Consumado es. तमाम हुआ। Y donde última vez abrió su boca el cuerpo. और जहाँ पे आखिरी दफा जिस्म में उसने अपना मुंह खोला En gran voz. और बड़ी आवाज में कहा, Entrego mi espíritu a tu mano. बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Si el espíritu de Jesús está en la mano del Padre, अगर यीशु की रूह बाप के हाथ में है, tu espíritu está en la mano de Dios. आपका रूह भी बाप के हाथ में है। Tu cuerpo puede tener cualquier enfermedad, आपके जिस्म को कोई भी बीमारी हो सकती है, pero tu espíritu está en la mano de Dios. लेकिन आपका रूह खुदा के हाथ में है Tu espíritu es más importante para Dios. और आपका रूह सबसे ज्यादा जरूरी है खुदा के लिए। Él ये no sabía pecado, वो गुनाह नहीं जानता था, pero llevó pecado de todos nosotros. लेकिन हम सबके गुनाह को अपने ऊपर लेके गया, Conociendo, sabiendo जानते हुए, पहचानते हुए que vamos a pecar, कि हम फिर भी गुनाह करेंगे, vamos a negar, हम उसका इनकार करेंगे vamos a venderlo, और हम उसे बेचेंगे भी, no vamos a escuchar su palabra. हम उसके कलाम को नहीं सुनेंगे,
voluntad. हम उसकी मर्जी से बाहर निकल जाएंगे, Pero todavía लेकिन फिर भी no fue a la cruz de Calvario. वो कलवरी की सलीब पे गिरा। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Porque Él nos ama a nosotros. क्योंकि वो हमें प्यार करता है Y nadie puede cambiar esto. और इसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। Lo voy a decir una vez más. मैं फिर से आखिरी कहूंगा, Nadie va a perder cielo por pecado. कोई भी इसलिए आसमान को नहीं खोएगा कि वो गुनाहगार है, Nadie. कोई भी नहीं। Muchos predicadores, muchos humanos, muchos de ustedes igual piensan. बहुत से टीचर, बहुत से लोग, बहुत से हम में से भी ये सोचते हैं Por pecado puedo perder los cielos. कि हम अगर गुनाहगार हैं तो हम आसमान खो सकते हैं। Nadie va a perder pecado nadie va a perder el reino de Dios por pecado. खुदा की बादशाहत को कोई भी इसलिए नहीं खोएगा कि वो गुनाहगार है। ¿Sabe por qué vamos a perder? जानते हैं हम क्यों खोएंगे? Sin conocer a Jesús. कि हम यीशु को जाने बगैर। Si tú conoces a Jesús, अगर आप यीशु को जानते हैं, tú no puedes perder el reino de Dios. आप खुदा की बादशाहत को खो नहीं सकते। Tú puedes hablar mal de mí. आप मेरे बारे में बुरा बोल सकते हैं, No pasa nada. कोई बात नहीं। Yo puedo hablar mal de otros. मैं दूसरों के बारे में बुरा बोल सकता हूँ, No pasa nada. कोई बात नहीं। Todos pecamos, हम सब गुनाह करते हैं, pero no vamos a entrar al reino de Dios लेकिन हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे si no lo conocemos a Jesús. अगर हम यीशु को नहीं जानेंगे। El Viernes Santo गुड फ्राइडे, es día donde el mundo lo conoció a Jesús, जहाँ पे दुनिया यीशु को जानी, donde el infierno conoció a Jesús, जहाँ पे जहन्नुम यीशु को जाना, donde Ram conoció a Jesús, जहाँ पे राम ने यीशु को पहचाना, donde el Buda conoció a Jesús. जहाँ पे बुद्धा ने यीशु को जाना। Todos los que murieron antes de él जितने भी उसे पेशतर मरे थे, conocieron a Jesús en un día, उस एक दिन में यीशु को उन्होंने जाना, porque él cuando entregó su vida, क्योंकि उसने जब अपनी जिंदगी दी, lo entró en el infierno वो जहन्नुम में दाखिल हुआ y puso el púlpito ahí. और वहाँ पे उसने अपना पुलपिट रखा। Muchas veces me preguntan, बहुत दफा मुझे पूछा जाता है ¿quién es el mejor predicador? कि सबसे अच्छा टीचर कौन है, Yo siempre lo río. और मैं हमेशा हंसता हूँ Y yo quiero decir a ustedes quién es el mejor predicador. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट टीचर कौन है। Nadie en la tierra. कोई भी इस दुनिया में नहीं है। El que puso su púlpito en el infierno, वो जिसने अपना पुलपिट जहन्नुम में रखा lo dijo, और कहा, yo he pagado el precio de ustedes. मैंने तुम्हारी कीमत चुकाई है, Yo soy el hijo de Dios. मैं खुदा का बेटा हूँ Y he venido a traer una esperanza a ustedes. और मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक उम्मीद लेके। Hoy quien quiere pedir perdón, और आज जो कोई भी माफी मांगना चाहता yo है, quiero llevar a la casa de mi padre. मैं उसको अपने बाप के घर में लेके जाना चाहता हूँ। Todos los que recibieron a él aquel día, और जितनों ने भी उसने उसे कबूल किया, un día vamos a verlo en el reino de Dios. एक दिन हम उन्हें खुदा की बादशाहत में देखेंगे। Cuando usted va al reino de Dios, जब आप खुदा की बादशाहत में si जाएंगे, ven Buda ahí, अगर आप वहाँ पे खुदा को देखें, no te sorprende, हैरान मत होइएगा, porque Jesús le predicó a él también. क्योंकि यीशु ने उसको भी बुराई की। Jesús ha predicado a todos यीशु ने सबको प्रीच किया y Jesús le murió por todos. और यीशु सबके वास्ते मोया है। Jesús no murió solo por mí, यीशु सिर्फ मेरे वास्ते नहीं मोया Jesús no murió solo para ustedes, और सिर्फ आप लोगों के लिए भी अपनी जान नहीं थी। Jesús murió por todos. यीशु ने अपनी जान हर एक के लिए दी है। Y Jesús यीशु para muchos no era la nadie, बहुत से लोगों के लिए वो कुछ नहीं था, pero para cielos लेकिन आसमान के लिए él era todo. वो सब कुछ था। Él era el lugar santísimo. वो पाक तरीन मुकाम था, Él moraba en el lugar santísimo. वो था जो पाक तरीन मुकाम में रहता था। Lo voy a decir este término, मैं ये आपको बताऊंगा और उसके साथ खत्म करूंगा। donde era la arca de Dios, जहाँ पे खुदा का अहद का संदूक था, donde lo ponen en el templo, en el tabernáculo, जहाँ पे टैबरनेकल होता है, donde lo ponen, जहाँ पे वो रखते हैं, si tú lo pones en una línea, अगर आप एक लाइन खींचे तो la cortina del lugar santísimo
Santísimo जो पर्दा है पाक तीन मुकाम का, es en la mitad वो बिल्कुल दरमियान में है, donde lo separaba la cortina. जहाँ पे पर्दा बीच में से खुलता था। Y luego la mismo punto tiene que llegar al lugar santísimo. Santo, perdón. और उसी पॉइंट से आगे जो है पाक मुकाम आता है, Y ese tiene cortina. और उसमें भी पर्दा है, Y tiene la misma línea. और उसी में ही डायरेक्ट सीधी लाइन जाती है, Y luego llega al lugar donde entra en tu tabernáculo. और फिर वो जगह आती है जहाँ पे आप टैबरनैकल के अंदर आते हैं। Ese cortina tiene que estar alineado con todo. और वो जो पर्दे हैं वो उनको एक दूसरे के साथ सारे कनेक्टेड एक लाइन में है, Una línea recta. एक बिल्कुल सीधी लाइन। Y luego hay donde lo ponen los luces. Ese no sé cómo lo dicen en hebreo. El cámara. Lights, Samara. Esa es la mesa ahí. और जो जहाँ पे नारी समारोह चलता है, दिए जाते हैं, वो वहाँ पे है। Y luego ahí está la mesa de panes aquí. और फिर दूसरी जगह पे जो मेज है वो रोटियों का है। Pero ¿dónde está la arca? लेकिन जहाँ पे अहद का सबूत है, Donde es un ángel y otro ángel. जहाँ पे एक तरफ फरिश्ता इस साइड पे है और दूसरा फरिश्ता दूसरी साइड पे है, En la mitad de todo esto इस सब के जो बिल्कुल दरमियान है, es una línea recta. एक बिल्कुल सीधी लाइन खाती है। Y donde están las luces y panes. और जहाँ पे रोटियों को और रोशनी का मेज लगा हुआ है, Cortamos una línea ahí. और अगर हम वहाँ पे एक लाइन खींचे तो Se marca un cruz perfectamente. एक परफेक्ट क्रॉस बनता है, और परफेक्ट स्लीव बनती है। El tabernáculo टैबरनैकल के अंदर era la cruz. उसमें स्लीव थी, Era que un día ibas a pagar su precio en la cruz. और इसलिए थी कि एक दिन कोई स्लीव पे अपनी जान देगा। Él pagó su precio. उसने अपनी कीमत चुकाई, Él no conocía pecado. वो गुनाह को नहीं जानता था, Él pagó el precio de pecado. लेकिन उसने गुनाहों की कीमत चुकाई। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Porque Él te ama. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, Él te quiere. वो आपको चाहता है। No hay otra cosa más importante que tu vida para Él. कोई और चीज जरूरी नहीं आपकी जिंदगी के अलावा उसके लिए। Él te ama a ti. वो आपसे प्यार करता है, Él no ama tu negocio. वो आपके कारोबार से प्यार नहीं करता, Él no ama tu casa. वो आपके घर से प्यार नहीं करता, Él no ama tu cuenta bancaria. वो आपके बैंक अकाउंट से भी प्यार नहीं करता, Él no ama tu ropa. और वो आपके कपड़ों से भी आपको प्यार नहीं करता, Él te ama a ti. वो आपको प्यार करता है। Se quedó duro वो नंगा हो गया para cubrirnos a nosotros. ताकि वो हमें ढांक सके, Él se quedó duro वो नंगा हो गया para cubrirnos a nosotros. कि वो हमें ढांक सके। Por favor, प्लीज, solo quiero que piensen hoy. सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप आज सोचिए ¿Qué hizo Jesús para nosotros? कि यीशु ने हमारे वास्ते क्या किया। Para muchos son 7 frases, बहुत से लोगों के लिए सिर्फ 7 कलमात हैं, pero es un decreto de Dios. लेकिन ये खुदा के फरमान है, Porque Él te ama. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Biblia dice, बाइबल कहती है en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 20, para terminar. Uno dice, पहला बाप और उसकी 10वीं आयत। 1 de Juan 1:10. पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 10वीं आयत। Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a su palabra no está en nosotros. और ये से कहता है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। Si tú piensas अगर आप ये सोचते हैं que usted no ha pecado, कि अगर आपने गुनाह नहीं किया, usted está diciendo, Dios, tú eres mentiroso आप ये कह रहे हैं कि खुदा तू झूठा है y tu palabra no está en mí. और तेरा कलाम मुझ में नहीं है। Cuando tú lo aceptas tus pecados, जब आप अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, tú lo dices, आप ये कहते हैं, necesito a ti otra vez. मुझे फिर से तेरी जरूरत है। Todos los días हर रोज yo le pido perdón a Dios por mis pecados. मैं अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफी मांगता हूँ। Todos
Señor, si yo me he fallado delante de मैं ti, कहता हूँ खुदावन, अगर मैंने तेरे आगे कुछ गलत किया है, perdóname. मुझे माफ कर। Te pido tu perdón. मैं तुझसे तेरी माफी मांगता हूँ। Necesito tu perdón. मुझे तेरी माफी चाहिए, Porque tu Hijo me ha pagado precio por mi perdón. क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी कीमत चुकाई है Y necesito a Él. और मुझे उसकी जरूरत है। A la vez que tú clamas a Jesús, जब भी आप यीशु को पुकारते हैं, Él no está lejos de ti. वो आपसे दूर नहीं होता, Él está cerca de ti. वो हमेशा आपके पास होता है। Cuando Él está cerca de ti, और जब वो आपके पास होता है, tu Padre está cerca de ti. उसका बाप भी आपके पास होता है। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Padre puede decir no a nosotros, बाप जो है हमें इनकार कर सकता है, pero no lo puede decir no a Él. लेकिन उसको इनकार नहीं कर सकता। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Porque Él está en Padre क्योंकि वो बाप में है y Padre está en Él. और बाप उसमें है। Quien ha visto a Él, जिसने उसे देखा, ha visto a su Padre. उसने उसके बाप को देखा। Y Él dijo, उसने कहा, yo no hago nada por mi voluntad, sino por la voluntad de mi Padre. मैं अपनी मर्जी से नहीं नामता, बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूँ। Esta es la voluntad de Dios. ये खुदा की मर्जी है Que tú puedes vivir en la victoria. कि आप खता में जिए। El cruz जो सलीब है, es la victoria para nosotros. वो हमारे लिए खता है। Usted lo sabe. आप ये जानते हैं, Todas las religiones del mundo दुनिया के जितने भी मजहब हैं, están contra el cruz. वो सलीब के मुखालिफ हैं, Pero cruz लेकिन सलीब para nosotros हमारे लिए es la victoria. वो खता है। El mensaje de cruz सलीब का पैगाम es la victoria para nosotros. हमारे लिए खता है, Es la victoria para nosotros. हमारे लिए खता है। Y el mensaje de cruz और सलीब का पैगाम inicia el Viernes Santo. वो गुड फ्राइडे की शुरुआत करती है। Se inició de la Viernes Santo. O Good Friday de su El mensaje cruz कल सलीब का पैगाम se inició el día de Santa, el Viernes Santo, गुड फ्राइडे के दिन शुरू हुआ, donde Jesús जहाँ पे यीशु se fue a la cruz. वो सलीब ले गया। ¿Dónde está tú? आज आप कहाँ पे हैं? ¿Cómo está usted? आज आप कैसे हैं? No importa tu vida. फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी कैसी है। Lo importante es cómo tú estás con Jesús. जरूरी ये है कि आप यीशु के साथ कैसे हैं, Cómo tú lo crees a Él. आप कैसे उस पर ईमान रखते हैं, Cómo tú lo ves a Él. आप उसको कैसे देखते हैं Cómo tú sientes a Él. और कैसा आप उसके साथ महसूस करते हैं। Este niño ये बच्चा no sabe la verdad. ये गुनाह के बारे में नहीं जानता। Así era Jesús. इसी तरह यीशु था, No pago precio. लेकिन उसने कीमत चुकाई। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Porque conocía la voluntad de Dios. क्योंकि वो खुदा की मर्जी को जानता था। Yo le he dicho a él muchas veces, cóstate ahí, ponte como cordero. Y él lo hizo. मैंने इसको बहुत दफा बोला कि उधर लेट जा, एक बड़े की तरह हो जा, एक गधे की तरह हो जा, और इसने वो सब कुछ किया। ¿Sabe por qué? जानते हैं क्यों? Porque todavía no tiene pena. क्योंकि अभी इसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। Si yo le digo a su hermano mayor, और अगर यही चीजें मैं इसके बड़े भाई को o कहूँ, a Ruth, या रूप को o कहूँ, a Esther, या स्त्रेय को कहूँ, तो van a poner cuadras. ये जो है इस तरह से मतलब शक्लें बनाएंगे और कहेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। Porque ya su tiempo ha llegado a distinta etapa. क्योंकि इनकी जो जिंदगी का एक फेज है वो फर्क हो चुका है। Él todavía no tiene sus redes sociales. इसके पास अभी भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है। Por eso nadie va a subir foto de él, que mira que es de él. इसके कोई भी शायद इसकी वीडियो या फोटो जो है मजाक के तौर पे अपलोड नहीं करेगा और इसका मजाक उड़ाएगा। Pero Jesús लेकिन यीशु lo sabía todo. वो सब जानता था। Todavía. अब तक, Todavía. अभी भी, फिर भी se quedó mudo para nosotros. वो हमारे वास्ते नंगा हुआ। Si yo le digo que ponte mudo, no va a poner mudo. अगर मैं इसको ये कहूँगा कि तू नंगा हो जा, ये नंगा नहीं होगा। Me escucha todo, pero mudo no va a ser. मेरी हर बात मानता है लेकिन नंगा नहीं होगा। Pues, no. ये मुझे कहेगा कि नहीं। ¿Se me está entendiendo? आप जो समझ रहे हैं, El papá lo dijo a Jesús. बाप ने यीशु से कहा, Tiene que estar mudo. तुझे नंगा होना है।
Jesús con su Padre. ये लेवल है लॉयल्टी का यीशु का बाप के साथ। ¿Cómo está usted? आज आप कैसे हैं? ¿Habrán luchas en tu vida? आपकी जिंदगी में मुश्किलात होगी? हाँ। ¿Habrá problemas en tu vida? आपकी जिंदगी में तकलीफें होंगी? Sí. हाँ। Yo le puse en Facebook. मैंने फेसबुक पे लिखा, No sigo a Jesús porque me da mejor vida. मैं यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलता कि मुझे बेहतर जिंदगी देता है। Él es mejor de vida. वो जिंदगी से भी बेहतर है। Son cosas que tienen que entender una vez más. आपको फिर से ये समझने की जरूरत है। Yo no sigo a Jesús porque me da mejor vida, por mejor cosa, mejor chiste. मैं यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलता कि मुझे बेहतर जिंदगी देता है, बेहतर चीजें देता है। Yo lo sigo a Jesús मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूँ porque Él es mejor que la vida, क्योंकि वो जिंदगी से भी ज्यादा बेहतर है, porque Él es vida eterna. क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी है। En Jesús hay vida eterna. यीशु में हमेशा की जिंदगी है। Jesús lo dijo, जब यीशु ने कहा, entrego mi espíritu a ti, mi Padre, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, todo estaba hecho. सब कुछ हो चुका था। Séptima vez, सातवीं दफा cuando Jesús abrió su boca, जब यीशु ने अपना मुंह खोला, dijo, उसने कहा, entrego mi vida a ti. मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ¿Cuántos de ustedes, nosotros, हम में से कितने lo podemos decir hoy a este? आज ये कह सकते हैं, Quiero entregar mi espíritu a ti. मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ? कोई भी नहीं। Todo el mundo dijo un año más, 6 meses más. हम सब जो है शायद एक दिन, एक महीना, एक साल और जीना चाहेंगे, Todos. सब। Pero Jesús, लेकिन यीशु ने, creo en mí. वो कहता है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ¿Saben por qué? जानते हैं क्यों? Porque lo sabía. क्योंकि वो ये जानता था El decreto de Dios. खुदा के फरमान को। El decreto de Dios खुदा का फरमान es no mandarte a nosotros al infierno. ये नहीं है कि हमें वो जहन्नुम में भेजे। Vamos a ir al reino de Dios. हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे। Vamos a ir al reino de Dios. हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे। No importa tu rostro, फर्क नहीं पड़ता आपका चेहरा कैसा no है, importa que te he puesto hoy, फर्क नहीं पड़ता कि आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं। importante. जो जरूरी है Vamos a ir al reino de Dios. कि हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे। ¿Cuántos de ustedes están preparados para ir al reino de Dios? आप में से कितने तैयार हैं खुदा की बादशाहत में जाने के लिए? ¿Cuántos lo sientan que van a ir al reino de Dios? आप में से कितने ये महसूस करते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में जाएंगे? ¿Cuántos lo confían que vamos a ir al reino और de Dios? कितने ये यकीन करते हैं कि वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे? ¿Cuántos lo pueden decir que fue decreto de Dios, por este no voy a ir al infierno, voy a ir al और reino de Dios? कितने में से हम ये कह सकते हैं कि ये खुदा का फरमान था, इसलिए मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा, मैं खुदा की बादशाहत में जाऊंगा। Tu familia va a ir al reino de Dios. आपका खानदान खुदा की बादशाहत में जाएगा। Tú estarás en el reino de Dios. आप खुदा की बादशाहत में होंगे Y ahí tú no tienes que comprar más ropas. और वहां पे आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं। Él te vas a dar las ropas. वो आपको कपड़े देगा, Te vas a dar una vestidura blanca. वो आपको सफेद पोशाक देगा Y no borrará tu nombre del libro de la vida. और जिंदगी की किताब में से आपका नाम नहीं मिटाएगा। Confesarás tu nombre al delante de su Padre y al delante de sus ángeles. और वो आपके नाम को अपने बाप के सामने और फरिश्तों के सामने पहचानेगा, इकरार करेगा। ¿Sabe qué? जानते हैं क्या? Él vas a decir, वो ये कहेगा, papá, पापा, él vas a llevar वो लेके जाएगा y vas a decir, और ये कहेगा, él es Daúd. ये दाऊद है। ¿Puede entender? आप ये समझ सकते हैं Vas a llevar un día a Jesús a mí. कि एक दिन यीशु मुझे लेके जाएगा, Un día vas a llevar a usted. एक दिन वो आपको लेके जाएगा Y vas a llevar delante de su papá. और अपने बाप के सामने लेके जाएगा Y vas a decir, और वो ये कहेगा, ese es Daúd. ये दाऊद है। Y luego sacará de ahí a nosotros. और वहां से वो हमें बाहर लेके जाएगा Y luego vas a llamar todos los ángeles de los cielos. और फिर आसमान के सारे फरिश्तों को बुलाएगा ¿Sabe qué vas a decir? और जानते हैं क्या कहेगा? Daúd, ese está bien. दाऊद ये जिब्राइल है, Ese es Micael. ये मिकाएल है, Ese es Rafael. ये रफाएल है। No. नहीं, ऐसे नहीं कहेगा। Él no me va a decir el nombre de los ángeles. वो मुझे फरिश्तों के नाम नहीं बताएगा।
vas a levantar mi mano. वो मेरे हाथ को बुलंद करेगा। No sé levantar o no, pero pienso, ponemos así. मैं नहीं जानता वो करेगा या नहीं, लेकिन हम ऐसे तस्वीर करते हैं। Muchachos, सुनो, ese es Daud. ये दाऊद है। Él no va a decir ese Rafael, ese no. वो मुझे फरिश्तों के नाम का नाम नहीं बताएगा, Él va a decir a ellos mismos. वो उनको मेरा नाम बताएगा। Eso es lo que hizo Jesús en la Viernes Santa. ये है जो यीशु ने गुड फ्राइडे को किया। Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. जिंदगी की किताब में हमारे नाम लिखे हुए हैं। Tu nombre está escrito. और आपका नाम लिखा हुआ है। Por favor, प्लीज no te preocupes. परेशान मत हो। Lo que está pasando en el mundo. जो दुनिया में हो रहा है, Prepárate, अपने आप को तैयार करें, porque alguien venció por ti. क्योंकि कोई आपके वास्ते हर चीज पे गालिब आया, Y quien venció और जो गालिब आया no era pecador, वो गुनाहगार नहीं था, era vencedor. वो फतामंद था, Era vencedor वो फतामंद था, y será vencedor. और वो हमेशा फतामंद रहेगा। Tú eres vencedor. और आप भी फतामंद हैं। Tú tienes que vencer. आपको हराने की जरूरत है, Tú tienes que vencer. आपको फतह पाने की जरूरत है। Quiero que pongas de pie. मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पे खड़े हो। Y termino con una cosa. और एक चीज के साथ खत्म करूंगा। Hace muchos años antes, बहुत साल पहले Dios me sacó de mi cuerpo. खुदा मुझे मेरे जिस्म में से निकाल के लेके गया। Primera vez cuando Dios sacó mi espíritu de mi cuerpo, पहली दफा जब खुदा ने मेरे जिस्म में से मेरी रूह को निकाला, esperaba este día. वो दिन जो था वो गुड फ्राइडे था। No, esperaba. एक दिन था Y ahí me habló algo. और वहां पे उसने मुझसे कुछ बात की Y me llevó en un avión. और वो मुझे एक जहाज में लेके गया। En ese momento yo no viajaba. उस दौर में मैं बहुत ज्यादा सफर नहीं करता था, No viajaba. Pero me llevó en un avión. लेकिन वो मुझे एक जहाज में लेके गया। Y cuando me llevó en el avión, और जब वो मुझे जहाज में लेके गया, Él me dijo algo. उसने मुझसे कुछ कहा, Hoy es el cumpleaños de tu hija y tú no lo olvidaste. आज तेरी बेटी की सालगिरह थी और तू भूल गया। Y yo empecé a llorar. और मैं रोने लग गया। Y me dijo, और उसने मुझसे कहा, pero yo no lo olvidé. लेकिन मैं नहीं भूला। Llámalo casa de coches. उस कंपनी कार कंपनी को फोन कर। En avión me dijo, उस जहाज में ही उसने मुझसे बोला, yo escuché voz मैंने उसकी आवाज को सुना y voz me dijo, और उस आवाज ने मुझसे कहा, llámalo फोन कर y dile que este coche está pagado para tu hija कि ये जो कार है ये तेरी बेटी के लिए पेड़ है y tu hija está en este lugar ahora mismo और तेरी बेटी इस वक्त उस जगह पर मौजूद है y llevan este coche a और él उस कंपनी को कह उस गाड़ी को उसके पास लेके जाए y te llevan una carta और वो तुझे एक लेटर te देंगे llevan una carta और एक लेटर लेके जाए y en esta carta और उस लेटर के lo अंदर que tú quieres escribir escríbelo जो तू लिखना चाहता है वो लिख दे। y yo llamando lo dije और मैंने कॉल करते हुए कहा y le expliqué todo और सारा कुछ बताया y le dije और कहा le llevan una carta कि एक लेटर लेके जाना y en esta carta lo escriben por favor और उस लेटर में प्लीज ये लिखना papá te amo कि तेरा बाप तुझे प्यार करता है está haciendo obra de Dios लेकिन वो खुदा के काम को कर रहा है por eso no podía estar contigo इसलिए वो तेरे साथ नहीं हो सकता था। yo quiero decir a ustedes मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ de aquel día hasta hoy उस दिन से आज तक han viajado 44 veces मैंने 44 कंट्रीज में ट्रैवल किया है। han viajado más de 135 veces fuera de España मैंने ऑलमोस्ट 135 दफा से ज्यादा स्पेन से बाहर ट्रैवल किया है। nunca podía imaginar मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। hace 4 días antes 4 दिन पहले yo estaba pensando मैं ये सोच रहा था cómo era yo hace 12 años antes कि 12 साल पहले मैं कैसा था y cómo estoy hoy और आज मैं कैसा हूँ y cómo estará mañana और आने वाले कल में कैसा होगा। cada uno de ustedes tiene su testimonio आप सब में सबके पास अपनी एक गवाही होगी cómo usted estaba hace 12 años 10 años कि 12 साल पहले 10 साल पहले आप कैसे थे, económicamente दौलत से, पैसे से, hoy cómo están और आज कैसे हैं।
Mañana será mejor. आप आने वाले कल में और बेहतर होंगे। Dios te va a dar más. खुदा आपको और देगा। Dios te va a multiplicar. खुदा आपको मल्टीप्लाई करेगा। Dios, y poco lo que tú te vas a bendecir. खुदा जो आपका थोड़ा है उसमें आपको बरकत देगा। Hace 4 días antes, 4 दिन पहले la verdad, de Dios estoy diciendo, मैं आपको सच्ची तौर पर खुदा की हजूरी में कह रहा हूँ। primera vez en este coche, पहली दफा उस गाड़ी में le dije, मैंने कहा un día कि एक दिन voy a tener un avión propio. मेरा अपना जहाज होगा, Porque el día, क्योंकि उस दिन el persona, el hermano que me sacó de mi cuerpo, वो हाथ जिसने मुझे मेरे जिस्म में से निकाला था y me puso en este avión, और मुझे उस जहाज में रखा था, este mismo Dios me dijo en este avión, उसी खुदा ने मुझे उस जहाज में कहा था, no quiero que llores nunca por dinero. मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी पैसे के लिए रोए। Nunca quiero que llores मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी रोए por dinero. पैसे के लिए, Porque el avión que tú estás sentado क्योंकि जिस जहाज में तू बैठा है es tu personal. ये तेरा अपना जाति है। Y ahí mismo este hermano me trajo otra vez en la tierra. और फिर उसी वक्त वो हाथ में दोबारा जमीन पे आया। Hoy 7 personas en el mundo. 7 लोग हैं दुनिया में Ellos me dijeron que Dios te va a dar un avión. जिन्होंने मुझसे कहा है कि खुदा एक दिन तुझे तेरा जाति जहाज देगा। Nunca oro. मैं कभी दुआ नहीं करता Mucha gente है। pregunta cuándo vas a comprar el avión. और बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि तू जहाज कब Yo खरीदेगा। dije, no tengo dinero ni para comprar coche todavía. और मैं उनको जवाब में ये कहता हूँ मेरे पास तो गाड़ी खरीदने के भी अभी पैसे नहीं है। Un día Dios me va a hacer. एक दिन खुदा मुझे देगा। Hace 4 días antes. 4 दिन पहले Primera vez. पहली दफा Lo estaba pensando. मैं सोच रहा था Y le dije, और कहा la verdad tú me vas a dar un diario. सच्ची तौर पे एक दिन तू मुझे जहाज देगा, Porque donde yo estaba, क्योंकि जहाँ पर मैं था donde ya llegamos, और जहाँ तक हम पहुँचे हैं no podíamos llegar. हम पहुँच नहीं सकते थे। Es tu misericordia ये तेरा रहम है y el sacrificio de tu hijo. और तेरे बेटे की कुर्बानी है। Lo quiero decir a usted. आपसे कहना चाहता हूँ, Dios me ha dicho algo, अगर खुदा ने आपसे कुछ कहा है vas a cumplir. वो पूरा होगा, Porque Él no es mentiroso. क्योंकि वो कोई झूठा नहीं है। Yo puedo mentir. मैं झूठ बोल सकता Tu हूँ, papá y mamá pueden mentir. आपके माँ बाप झूठ बोल सकते हैं, Pero Dios no. लेकिन खुदा झूठ नहीं बोल El सकता। decreto de Dios कि खुदा का फरमान somos de bendición. कि हम बाबरकत हैं। Por eso Jesús lo dijo. इसके लिए उसने कहा Consumados. तमाम हुआ, Consumados. तमाम हुआ। Quiero que cierre tu ojo मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें y pídele lo que quiere pedir esta noche a Él. और मांगे उससे आज रात जो आप मांगना चाहते हैं। Pídele मांगे documentos, अपने डॉक्यूमेंट्स, dinero, पैसा, coche, गाड़ी, casa, घर, lo que sea, जो कुछ भी, por su presencia, या उसकी हजूरी अपने लिए, su relación con usted, उसका रिश्ता आपके साथ, sanidad de su cuerpo. अपने जिस्म की शिफा को Por favor, प्लीज। Él derramó su sangre para nosotros. उसने अपना खून हमारे वास्ते बहाया, Él derramó su sangre para nosotros. उसने अपना खून हमारे वास्ते बहाया। Él fue a la cruz para nosotros. वो हमारे वास्ते कलवरी पे गया, Él pagó precio para nosotros. उसने हमारे वास्ते कीमत चुकाई, Él pagó precio por nosotros. उसने हमारे वास्ते कीमत चुकाई, Él pagó precio por nosotros. उसने हमारे वास्ते कीमत चुकाई, Él ha pagado precio para nosotros. उसने हमारे वास्ते कीमत चुकाई। El precio और वो कीमत es la sangre del Cordero. वो बर्रे का खून है, Es la sangre del Cordero. बर्रे का खून है, Es la sangre del Cordero de Dios. खुदा के बर्रे का खून है, Que no conocía pecado. जो गुनाह को नहीं जानता था, Se pagó precio de nuestro pecado. उसने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। Y quien pagó el precio de nuestro pecado, और जिसने हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई, Él hizo todo por nosotros. उसने हमारे लिए सब कुछ किया, Él lo hizo todo por nosotros. उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, Él hizo todo por nosotros. उसने हमारे लिए सब कुछ कर Él दिया, hizo todo por nosotros. उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। Él hizo todo